travel a lot. So मैंने बहुत कोशिश करी बहुत सारे वीडियोस बनाने की, because there's a lot of content that I wanted to share with you, a lot of information that I wanted to share with you. And बहुत टाइम तक किया भी. I think we recorded over 80 or 90 videos and put it on our YouTube channel over the past 3 years. But अगर आप लास्ट ईयर के देखेंगे तो शायद 1 या 2 वीडियोस होंगे. उसका रीज़न ये है कि my work involves a lot of traveling, and traveling में इतना आपको वक्त नहीं मिल पाता वीडियोस बनाने का, उन्हें एडिट करने का. ऑफ कोर्स हियर एंड देयर थोड़ा बहुत वक्त मिलता है, बट अगेन वो आप फ़ोन पे या ईमेल पे या चैट्स पे ही अगर आप बात कर लो किसी से तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. बट द थिंग इज़, आई थिंक इस मीडियम के थ्रू आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच सकते हो, बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो जिनसे शायद आपकी बात भी ना हो, जो शायद आपको जानते भी ना हो. तो आई वांटेड टू do this for a long period of time, but then as I said, traveling somehow was a barrier between us when it came to recording such content and sharing with you. So I decided कि एक नई series of vlogs या videos शुरू करते हैं जहाँ पे I keep on traveling and I'll talk to you, I'll share content with you. So the easiest way is, for example, मैं ड्राइव बहुत करता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ड्राइविंग के टाइम पे बहुत सारा वक्त होता है जब आप लैपटॉप पे नहीं होते, आप काम नहीं कर रहे होते, सिर्फ आप ड्राइव कर रहे होते हो. So I thought, why not this? Because there are a lot of content creators who do this for different kind of spaces, sections, domains. But then education में I wanted to do this with you. Anyway, let's cut the long story short. So I wanted to do this and I wanted to share content with you. So first of all, thank you so much for joining in. Thank you so much for patiently listening. I can promise you one thing कि आप जितने भी videos YouTube पे advisory के देखोगे, again हो सकता है entertainment कम हो सकता है spice level कम हो सकता है उसकी editing quality, music शायद कम हो, बट एक चीज आपको प्लेंटी में मिलेगी, एंड दैट इज इंफॉर्मेशन. एंड इंफॉर्मेशन विच इज रिलायबल, इंफॉर्मेशन विच इज absolutely crystal and clear, because the information that I'll be sharing with you would be coming from authentic sources like governments or embassies or universities directly. Now you all know Advisory is an education consulting platform, but then I would be sharing 2 different kind of infos with you. Number 1, of course, related to higher education, international education. Number 2, related to international travel. For example, visas, immigration, work permits, dependent visas, salaries. I'll be sharing that kind of information with you as well. So, as I said, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो, which would not take more than 10 minutes, so you would have solid information related to one topic in every video. आज मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से शुरू करें, तो आई थॉट कि एक ऐसे टॉपिक से शुरू करते हैं जिसका भी सीजन भी चल रहा है. सो राइट नाउ इट्स व्हाट 3rd of July, and 3rd of July is basically, I wouldn't say 3rd of July, but July is basically the month of visa. Whether you're going to US, whether you're going to UK, Europe, anywhere, this is the time for visa applications for students. A lot of tourists are also planning to visit foreign countries because summer में obviously travel करने के लिए अच्छा रहता है. So let's cut the long story short. We are going to talk about visa, and उसमें भी सबसे important चीज, how to make sure your visa is not rejected. Right? So I recently created a reel related to the same topic. I put it on Advisory Instagram. I'll put the link in the description below. आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो. बट रील का आपको पता है, रील और यूट्यूब में थोड़ा सा फर्क है. रील इज लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और यूट्यूब इज लार्जली फॉर एजुकेशन पर्पस. तो ये डिलेमा हमेशा रहता है कि रील क्रिएट करें या एक वीडियो क्रिएट करें. बट देन एडवाइजरी और मेरा काम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना है. एंटरटेनमेंट हो सके इट्स फाइन, बट वो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो आई क्रिएटेड 1 minute ऑफ रील. आई नो 1 minute भी बहुत लंबा है रील के लिए, बट देन आई वांटेड टू डू दिस. एनीवे, कमिंग बैक टू कंटेंट. सो आज उस बारे में बात करेंगे कि हाउ टू मेक श्योर योर वीजा इज नॉट रिजेक्टेड. नाउ वेदर यू अप्लाइंग टू यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करो, एक लंबी चेकलिस्ट होती है जो आप वीएफएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, एम्बेसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो.
you can be applying for a different kind of visa. For example, हो सकता है आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो सकता है आपकी कंपनी आपको बिजनेस ट्रिप पे भेज रही हो, और ये भी हो सकता है कि आप हो सकता है स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हो, शॉर्ट लॉन्ग स्टे एक्सचेंज प्रोग्राम, पेंडेंट वीजा। बट हर वीजा के लिए एक प्रॉपर चेकलिस्ट होती है, और उस चेकलिस्ट में 8 से 10 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट की बात करूं तो आपको चाहिए होता है पासपोर्ट, सबसे पहले एक वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको भरना होता है, उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, आपको फोटोग्राफ्स चाहिए, 2 से 3 फोटोग्राफ्स चाहिए, और उसके अलावा आपको होटल बुकिंग्स चाहिए, आपको एक फ्लाइट टिकट्स चाहिए, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल इंश्योरेंस मांगती हैं एंड इट्स मैंडेटरी। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक स्ट्रांग मोटिवेशन लेटर चाहिए। उसके साथ साथ फंड्स ऑब्वियसली आपको दिखाने होंगे अपने बैंक अकाउंट वगैरह में। सो ये प्रोसेस है, और मैं उन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे यूएस हो गया, यूरोप हो गया, यूके हो गया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीजा ऑन अराइवल। इंडियंस को आई थिंक 59-60 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल है, जैसे थाईलैंड है, श्रीलंका है। यहाँ का वीज़ा आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू, मैं 2-3 साल पहले श्रीलंका गया था, और श्रीलंका का वीज़ा ऑनलाइन है। मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, 20 मिनट में उनका ETA ईमेल आ गया कि ये आपका वीज़ा है। आई थिंक 1000-2000 रुपये लगे थे, और आप इस ईमेल को दिखा सकते हैं और आप जा सकते हैं। और जब मैं कोलंबो एयरपोर्ट पहुंचा तो बस मैंने वो ईमेल दिखाया, प्रिंट आउट भी नहीं चाहिए था, वो ईमेल दिखाया और उन्होंने जाने दिया। सेम फॉर दुबई का भी अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अदरवाइज आपके पास कोई वीज़ा नहीं है तो आप मेक माई ट्रिप पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और बहुत आसानी से मिल जाएगा। थाईलैंड आई थिंक एवरीबडी नोज। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रीज वेयर वीज़ा इज एक्चुअली टफ। सो वहाँ पे एक चेकलिस्ट होती है। अब हर इंसान फोटोग्राफ दिखाएगा, हर इंसान एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, हर शख्स अपना पासपोर्ट लेके जाएगा, बहुत सारे लोग फ्लाइट टिकट्स भी करेंगे, कुछ डमी करेंगे, फंड्स भी दिखाएंगे। तो वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है? नाउ आई हैव बीन इन दिस स्पेस फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ एंड आई हैव हेल्ड मोर देन 25,000 एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, business travelers, and I work very closely with the French embassy, the British embassy, the German embassy, and of course I have known people in the US space as well. So I can tell you from my personal experience and also the experience of around 20,000 plus people. उनके एक्सपीरियंस में आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, इनफैक्ट 3 चीज़ें हैं, कि वो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जिसकी वजह से एक वीज़ा रिजेक्ट होता है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ मोटिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। मेरे बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमने तो 6 लाख रुपए चाहिए थे, हमने तो 10 लाख रुपए दिखाए, होटल बुकिंग्स चाहिए थी, हमने वो भी दिखाई, फिर भी हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ मोटिवेशन। आपका एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन लेटर होना चाहिए कि आप उस कंट्री में जा किस लिए रहे हो। वेदर यू आर गोइंग फॉर स्टूडेंट पर्पस और यू आर गोइंग फॉर ट्रैवल और यू आर गोइंग फॉर टूरिज्म और बिजनेस, व्हाटएवर द रीजन बी, आपको एक कवर लेटर लिखना है और उसमें वो सारी चीजें मेंशन करनी है जिससे आप सामने वाली कंट्री को कन्विंस कर सको दैट आई एम ओनली कमिंग फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, मैं दिल्ली में रहता हूँ और अगर मुझे पेरिस जाना है 3 दिनों के लिए अपने वाइफ और बच्चों के साथ या फ्रेंड्स के साथ, तो मैं उसमें डालूंगा कि हाँ ठीक है मैं घूमने जा रहा हूँ, बट मैंने कवर लेटर में कुछ नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा आई एम गोइंग फॉर टूरिज्म, और मैंने टिकट्स दिखा दी, फ्लाइट दिखा दी। वीजा ऑफ कोर्स लग सकता है, बट ये भी रीजन है कि वीजा रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आपने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया कि आप वहां जाके करोगे क्या, आपकी आइटनरी क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, एवरी कंट्री वांट्स टू नो वुड दिस पर्सन गो बैक, क्योंकि उनको इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। किसी भी कंट्री को इमिग्रेंट्स इतनी आसानी से नहीं चाहिए होते हैं। अगर किसी कंट्री में कोई वॉर या कुछ इंटरनल सिचुएशन ना हो तो किसी भी कंट्री को इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए होते, तो दे आर लुकिंग फॉर जेन्युइन ट्रैवलर्स। अब जेन्युइन ट्रैवलर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यू टेल देम दैट आई हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद माय नेटिव कंट्री एंड आई विल कम बैक। इफ यू कैन कन्विंस दिस टू समबडी, आपका वहां पे एक पॉइंट कवर हो जाता है। सो आई रिपीट अगेन, समराइज करके, कि आपको ये दिखाना है कि आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज है इंडिया से एंड यू विल कम बैक। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, मतलब स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हो, तो आपको कवर लेटर में ये नहीं लिखना है कि मैं वहां जाके जॉब करूंगा और फिर वहीं सेटल हो जाऊंगा और फिर अपने बीवी बच्चे वहां पे घर बनाऊंगा। इवन इफ यू प्लान टू डू दैट, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ कोर्स आपको ऑफर कर रही है, आपको स्टे बैक वीजा, फॉर एग्जांपल यूके आपको स्टे बैक वीजा देता है, राइट। तो यूके को मालूम है कि अगर आप वहां जॉब कर सकते हो, अपनी फैमिली प्लान कर सकते हो, बट आपको
कवर लेटर में ये नहीं लिखना है कि मैं वहाँ फैमिली प्लान करने या जॉब करने जा रहा हूँ. यू जस्ट टेल देम दैट आई एम गोइंग फॉर एजुकेशन पर्पस. एज सून एज आई ग्रेजुएट आई will rather focus on international jobs because I'm going for an international program and I would be very happy to come back to India as well if there are enough opportunities. ये आपको लिखना है. उसके बाद आप यूके में जॉब सर्च करो, there is no problem. Similarly, business travelers या tourism के लिए भी आपको ये लिखना है कि I'm going for 3 days. After that I'll come back because I have my job in India or I have my business in India. और उसकी थोड़ी सी डिटेल्स दो. अगर आप बिजनेस करते हो तो अपने कंपनी का CIN नंबर डालो, डायरेक्टर का डॉक्यूमेंट डालो, और अगर आप जॉब कर रहे हो तो अपनी सैलरी स्लिप्स लगाओ, इनकम टैक्स रिटर्न्स जरूर लगाओ बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न से आपको पता चलता है, एम्बेसी को पता चलता है कि ये बंदा कितना जेन्युइन है, कहाँ जॉब कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, उसकी इनकम क्या है. अगेन इनकम टैक्स रिटर्न मैंडेटरी नहीं है बट इट्स स्ट्रांगली रेकमेंडेड. ITR डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो एनीवे चेकलिस्ट तो आप चेक कर सकते हो. मैं आप जिस भी कंट्री की चेकलिस्ट बोलोगे, नेम दैट कंट्री और टैग मी एंड आई विल शेयर दैट चेकलिस्ट विद यू इन द कमेंट सेक्शन. बट द फर्स्ट थिंग इज strong motivation letter covering your motivation to travel and your future goals, whether you plan to come back or not. That's number 1. Number 2, funds are very important. Usually क्या होता है कि हम पैसे तो दिखा देते हैं बट हमें पता नहीं होता कि कितने पैसे दिखाने थे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप US जा रहे हो तो आपको 8 से 10 लाख रुपए दिखाने हैं bare मिनिमम. अगर आप जर्मनी जा रहे हो आपको कुछ 11,800 यूरो दिखाने हैं bare मिनिमम. अगर आप फ्रांस जा रहे हो आपको 7,500 यूरो दिखाने हैं. अगर आप लंदन जा रहे हो आपको 13 लाख रुपए विच इज 13,000 पाउंड दिखाने हैं. नॉन लंदन मेट्रोपॉलिटन पे जा रहे हो आपको 10,000 पाउंड दिखाने हैं. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेकलिस्ट से भी मिल जाएगी और आपको वहाँ की एम्बेसी से भी मिल जाएगी. फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बट बहुत सारे लोग इसे चेक नहीं करते हैं. तो उन्हें लगता है कि हाँ अगर मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ और 10 लाख दिखाने हैं और मैंने सिर्फ 8 लाख या 9 लाख दिखाए तो दैट्स नॉट इनफ. तो पहली चीज तो ये. सिमिलरली अगर आप ट्रैवल टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो आप दिखा सकते हो लेट्स से अगर आप 4 दिन या 5 दिन, मैं कहता हूँ आप 1 हफ्ते के लिए पेरिस जा रहे हो तो 1 हफ्ते के लिए अगर आप पर डे के हिसाब से $100 या 100 यूरोज इक्विवेलेंट दिखाओगे तो विच इज फाइन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 7 दिनों के लिए जा रहे हो तो आपके पास 700 यूरोज यानी कि कुछ 60,000 रुपए होने चाहिए. आपकी टिकट बुक होनी चाहिए और आपका होटल बुक होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 70,000 रुपए है और टिकट होटल मैंने नहीं कराया. वो आपका होना चाहिए और फिर आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए. और आप फंड्स कैसे दिखा सकते हो? आप अपने बैंक स्टेटमेंट में दिखा सकते हो. अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं यू कैन ऑल्सो यूज देयर बैंक स्टेटमेंट. सेम फॉर एजुकेशन. सो शो द मनी, सैलरी स्लिप्स इफ यू हैव, company documents if you are doing business, self-employed, and ITR. So funds is also covered. Now the third most important point is accommodation. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डमी accommodation बुक करते हैं या Airbnb बुक करते हैं which sometimes may work. Usually लोग क्या कहते हैं कि अरे यार मैं तो यूरोप जा रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था उसने बोला कि डमी बुकिंग चल जाएगी तो मैंने भी करा ली. बट आपके फ्रेंड ने कब वीजा लगवाया था, उस टाइम पे क्या रूल्स थे, क्या रेगुलेशंस थे, आज की डेट में क्या रूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट और एम्बेसीज के रेगुलेशंस हमेशा चेंज होते हैं. आज से 10 साल पहले यूके में 2 साल का स्टे बैक वीजा था, 2 साल पहले 0 था और 2 साल पहले फिर से 2 साल का स्टे बैक वीजा आ गया. तो नई गवर्नमेंट्स के साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी US गए थे तो वहां पे अभी तक ये रूल था कि H1B लगवाना है तो वो लग जाएगा बट रिन्यू करवाने के लिए आपको इंडिया आना पड़ेगा. अभी उन्होंने अनाउंस किया कि नहीं, आप वहां से भी करा सकते हो रिन्यू, US में रह के, आपको इंडिया नहीं आना है. सो रूल्स कीप ऑन चेंजिंग. सो प्लीज डोंट रिलाई ऑन इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत पुरानी हो. लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए यू कैन कंसल्ट अ ट्रैवल कंसल्टेंट. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज और इजी चीज ये है, आप एम्बेसी से पूछ लो, आप उन्हें ईमेल डाल दो, उनकी वेबसाइट पे चले जाओ, VFS की वेबसाइट पे चेकलिस्ट डाउनलोड कर दो या सिंपली आप कमेंट कर दो, आई विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन. एंड ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन है तो यू डोंट हैव टू पे एनीवन to get that information. और information मेरे ख्याल से हमेशा फ्री होनी चाहिए, so you should have access to information. Now, so आपको accommodation दिखाना बहुत जरूरी है. अगर आप 4 दिनों के लिए जा रहे हो you should have 4 दिन का confirmed and paid accommodation. When I say paid, आप booking.com पे जाके unpaid accommodation confirmation नहीं ले सकते, right? हो सकता है आपका वीजा लग जाए बट अगर आपका पेड है तो आपके 99% चांस हो जाते हैं. वही चीज है, ITR मैंडेटरी नहीं है. बट अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप और मैं दोनों वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास ITR है और मेरे पास ITR नहीं है तो मैंडेटरी तो दोनों केस में नहीं था बट आपका वीजा चांस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपके पास
सिमिलरली अगर आप जस्ट अ सेकेंड, इट्स अ टोल प्लाजा, yes, so not to worry about because I have FASTag, but anyway, so अगर आप अकोमोडेशन में फंड्स दिखा, अगर आप अकोमोडेशन कंफर्म दिखा रहे हैं विच इज नॉट पेड, देन ऑफ कोर्स हो सकता है वीजा लग जाए. बट अगर आपकी अकोमोडेशन पेड और कंफर्म्ड है, 100% चांसेस आर देयर दैट आपका वीजा लग जाएगा. सिमिलरली फॉर स्टूडेंट वीजा, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीजा में अगर आप 1 साल के लिए जा रहे हो और आपने अकोमोडेशन दिखाया 1 हफ्ते का, तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस हैं. A lot of embassies confirm that you should have at least 90 days. Just 1 second. Thank you. Yeah, so you should have at least 90 days of confirmed booking. अगर आपकी बुकिंग 90 days confirm है, तो फिर आपकी भी 90 days के अंदर आप रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट वीजा को. वो आपको करना होता है हर कंट्री में स्टूडेंट वीजा को कन्वर्ट, और उसके बाद आप अपना अकोमोडेशन रिन्यू कर सकते हो. बट 90 days का आपका कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, राइट? सो बस ये 3 रीजंस हैं. अगर आप इन 3 रीजंस को प्रॉपरली कवर करते हो एंड मेक श्योर कि ये तीनों चीज सही हैं, तो फिर आपका वीजा चांस 99.9% कंफर्म हो जाता है. 1.01% चांस तो हमेशा रहता है, बिकॉज ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं है कि आप कुछ भी अप्लाई करो, डॉक्यूमेंट्स कितनी भी कोशिश कर लो और आप अप्लाई करते वक्त श्योर रहते हो कि मेरा वीजा 100% लगेगा. लाइक I have been traveling internationally for almost a decade now, और मैं बहुत सारे वीजा अप्लाई कर चुका हूँ, बहुत सारे वीजा मिल चुके हैं. बट स्टिल आज की डेट में जब मैं वीजा अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडियन पासपोर्ट उतना प्रिविलेज नहीं है, तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने यूके का पासपोर्ट, यूके का वीजा अप्लाई किया, मेरा वीजा आएगा ये मुझे पता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं. उसके पहले भी एक टूरिस्ट वीजा मिल चुका है, वो भी मुझे पता है. बट जब आपका कुरियर आता है तो आप भगवान से यही मनाते हो, हे भगवान मेरा वीजा लग गया, राइट? और जब आप पासपोर्ट का वो सैशे ओपन कर रहे होते हो जो कुरियर में आता है, तो आप हमेशा सोचते होते हो भगवान प्लीज मेरा वीजा लगवा दीजिए, राइट? सो अब क्या कर सकते हैं भाई, ये हमारी सिचुएशन है, हमारा पासपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है, हमें वीजा लेना पड़ता है. तो वीजा लेने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. So that's it. This is what I wanted to share. तो again ये 3 चीजें अगर आप मेक श्योर करते हो, तो आपको किसी भी ट्रैवल कंसल्टेंट की, एजेंट की जरूरत नहीं है, राइट? आप पासपोर्ट आपके पास होगा, फोटोग्राफ्स आपके पास होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप भरोगे ही भरोगे. हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म में 1-2 मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए मैंने एक यूट्यूब वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, फ्रांस का बनाया है. If you want to check that video, I'll share the link in the description. और किसी कंट्री का चाहिए, please let me know. I'll again record a dummy application and I'll share the video with you. But application is very easy. English में होती है, हर चीज आप नॉर्मली भर सकते हो. अगर आपको कोई इशू आ रहा है, जस्ट रीच आउट टू द टीम. आप एडवाइजरी की वेबसाइट पे जा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप यूके का फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको नहीं मालूम कि क्या करना है, टेक अ स्क्रीनशॉट, आप एडवाइजरी को व्हाट्सएप करो, दे विल शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू सेम डे, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो ये सारी चीजें तो हो गई, बट जो 3 मेन चीजें हैं, आपको एक कवर लेटर लिखना है, कवर लेटर होना चाहिए. दूसरी चीज आपके पास फंड्स प्रॉपर होने चाहिए, और तीसरी चीज आपकी अकोमोडेशन 100% कंफर्म्ड होनी चाहिए. इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज 3 थिंग्स, आई एम नॉट सेइंग अगेन कि 100% वीजा लग जाएगा, बट अगेन 99.9% यू आर देयर. आपने अपनी तरफ से 100% दिया है, एंड देन ऑफ कोर्स बाकी तो भगवान के ऊपर है और एम्बेसी के ऑफिसर्स के ऊपर है. बट अगेन डोंट वरी, आपका वीजा लग जाएगा. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. सो इफ यू हैव एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस, डाउट्स, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. आई विल पर्सनली आंसर दीज. वी हैव अ टीम एज वेल, सो वो लोग भी शेयर कर सकते हैं. हमारी टीम भी आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती है. कोई चेकलिस्ट चाहिए, यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट. You can share this video with your friends who are traveling, with your family members who are traveling. I think ये 20 मिनट का वीडियो हो गया. सॉरी, थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाने के लिए. एक्चुअली मैंने आपको कहा कि 1 साल बाद बना रहा हूँ. ट्रैवलिंग के टाइम बहुत कम वक्त मिलता है, बट मेक श्योर you can share this with people who are looking for this information. And आगे से I'll make sure कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो. आपके 10 मिनट should be more than enough. And I'll keep sharing this kind of